آج کی کہانی کی شروعات ایک بھیانک طوفان کے اندر اڑتے ہوئے پلین سے ہوتی ہے، جہاں پہ ہمیں چنک دکھایا جاتا ہے۔ بھیانک طوفان کی وجہ سے پلین کا ایک دروازہ اڑ جاتا ہے اور پائلٹ جلدی سے چنک کو سیٹ پہ بٹھا کے اس کو سیٹ بیلٹ لگا دیتا ہے، کیونکہ اب پائلٹ نے فوراً سے سمندر کے اندر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی تھی اور پلین تیزی سے بے قابو ہو کے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی چنک دیکھتا ہے کہ جو پاکٹ واچ اس کی گرل فرینڈ نے دی تھی وہ دور جا کے گر چکی ہے، لیکن تبھی چنک اپنی سیٹ بیلٹ کھول کے اپنی پاکٹ واچ کو اٹھانے کے لیے چلا جاتا ہے اور اب دھیرے دھیرے پائلٹ پلین کو سمندر کے اندر لینڈ کر رہا تھا، لیکن سمندری طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ سارا سمندری طوفان پلین کے اندر ہی بھر جاتا ہے۔ سیفٹی بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے چنک کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن پلین کا اوپر والا حصہ پانی کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اب چنک کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے صرف اور صرف ایک رافٹ تھا، لیکن رافٹ کے کھلتے ہی رافٹ کی رسی اچانک سے پلین کے ملبے کے ساتھ جا کے اٹک گئی اور پھر ڈوبتے ہوئے پلین کا ملبہ چنک کو اپنی طرف کھینچنے لگا، لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ رسی خود بخود ہی ٹوٹ گئی اور پھر آخر کار چنک ان لہروں کے اندر موت اور زندگی کی جنگ لڑتا ہوا رافٹ تک پہنچ ہی گیا۔ اب وہ ایک واحد رافٹ ہی تھا جو چنک کی زندگی کو بچا سکتا تھا۔ اس نے مرتے دم تک رافٹ کے کناروں کو بڑی ہی مضبوطی سے پکڑے رکھا اور پھر کچھ ہی سیکنڈ میں پلین کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چنک بیچارہ پھر سمندر کی لہروں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اب چنک کے لیے اس سمندر کے اندر خطرے بڑھتے جا رہے تھے۔ چنک کو نہ صرف ان خوفناک لہروں کا سامنا تھا بلکہ آندھی اور طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے چنک کی ساری امیدوں پہ ان لہروں کی طرح پانی پھرتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے لائف رافٹ کے اندر سے بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ سمندری طوفان کا سامنا کرتے ہوئے اور ان خوفناک لہروں سے جوجھتے ہوئے چنک آخر کار کئی سالوں کے لیے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ چنک بیچارہ موت کے منہ سے تو بچ نکلا تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے زندگی کے 4 دن نہیں بلکہ 4 سال اسی سنسان کنارے پہ گزارنے والا ہے، اور چنک کو بالکل معلوم نہیں تھا اس سنسان جگہ پہ پتہ نہیں اسے کتنے خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کنارے پہ چلنے لگا اور اپنے پلین کے اندر سے گری ہوئی چیزیں اکٹھی کرنے لگا اور اپنے ہی جیسے لوگوں کی وہاں پہ تلاش کرنے لگا، لیکن اسے وہاں پہ کوئی انسان بھی دور دور تک نظر نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا سنسان آئی لینڈ تھا جہاں پہ دور دور تک کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جان بچانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لگانا شروع کر دیں، اور پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ہیلپ لکھ دیتا ہے، اور پھر یہ سب کچھ کرتے کرتے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے اور چنک ابھی بھی اسی امید میں کنارے پہ کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرتی ہوئی کوئی نہ کوئی بوٹ تو اسے دیکھ ہی لے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ پوری رات چنک بیچارہ وہاں کنارے پہ بیٹھ کے سوچتا ہی رہ گیا اور اگلی صبح کا سورج نکل آیا۔ اگلی صبح وہ پلین سے نکلا ہوا سارا سامان ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے اور اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو پاکٹ واچ اس کی گرل فرینڈ نے اس کو دی تھی وہ اس کو نکال کے دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گزرے ہوئے ٹائم کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔ اس خوفناک حادثے کے بعد چنک کی فیملی سمجھ چکی تھی کہ چنک اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن چنک تو اس آئی لینڈ پہ زندہ رہنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ پھر اس آئی لینڈ پہ چنک اپنی کمپنی کے سارے پارسل اکٹھا کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان پارسلز کو اوپن نہیں کرے گا، کیونکہ چنک اپنے کسٹمر کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے ہیلپ کا نشان لکھا تھا وہ بھی سمندر کی لہروں سے اب مٹ چکا تھا، اور پھر چنک بیچارہ دوبارہ سے وہاں سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور ان لکڑیوں کی مدد سے وہ وہاں پہ ہیلپ لکھ دیتا ہے۔ یہاں پہ 2 دن گزارنے کے بعد چنک کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اسے یہاں سے نکلنا ہے تو اسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوگا، اور اسے کھانے کے لیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا سوائے کچھ ناریلز کے، اور اب اس سے وہاں کے ناریل ٹوٹ ہی نہیں رہے تھے، اور اب ناریل کو توڑنا بھی اس کے لیے ایک مشکل چیلنج بن چکا تھا، اور پھر وہ اس ناریل کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا پانی پیتا ہے، جو پانی اس کے لیے کسی جنت کے پانی سے کم نہیں تھا۔ وہاں سے کچھ دور چنک کو پانی میں کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ جب بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک پائلٹ کی ڈیڈ باڈی تھی، اور دیکھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پائلٹ تو کافی دن پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیچارہ چنک پریشان ہو جاتا ہے اور پائلٹ کی ڈیڈ باڈی کو وہ آئی لینڈ کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ چنک کو پائلٹ کے پاس سے کچھ ضروری سامان ملتا ہے، اس کے بعد وہ سارا سامان نکال لیتا ہے اور اس پائلٹ کے لیے ایک قبر کھودتا ہے، اور اس قبر کے اندر پائلٹ کو وہ دفن کر دیتا ہے، اور اس قبر کے پاس والی چٹان پہ وہ اس پائلٹ کی مرنے کی ڈیٹ لکھ دیتا ہے، اور پھر چنک بیچارہ اداسی کے عالم میں ساری رات گزار دیتا ہے، اور پھر چنک فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس خوفناک آئی لینڈ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ وہاں کے پتوں پہ جمی ہوئی اوس کو ایک ناریل کے اندر اکٹھا کر لیتا ہے، اور پھر وہ صاف پانی کو پی کے زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کھانے کے لیے وہاں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسی رات اس کو کنارے پہ ایک دھیمی سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو لگا کہ اب شاید اس کو اس کنارے پہ اور زیادہ رہنا نہیں پڑے گا۔ وہ کنارے پہ کھڑا
होकर खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग गया और उसने अपनी छोटी सी टॉर्च ऑन करके उनको अपने होने का सिग्नल भी दिया। लेकिन जाहिर सी बात थी कि दूरी ज्यादा होने की वजह से ये हल्की सी टॉर्च की रोशनी उसके किसी काम नहीं आ सकती थी और फिर से उसके अंदर जागी हुई उम्मीदें वहीं पे दम तोड़ गईं। उम्मीद टूटने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी राफ्ट को लेके एक बार फिर से वो इन लहरों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वो बेचारा बार बार हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन समुद्र की तेज लहरें हर बार उसकी हिम्मत पे पानी डालती जा रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद वो उन लहरों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उस बेचारे की हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी और फिर समुद्र की तेज लहर ने उसको अपने अंदर खींच लिया। समुद्र के अंदर जाते ही एक नुकीली चट्टान ने उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब चंग के अंदर उन लहरों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो अपनी टूटी हुई राफ्ट को खींच के वापस किनारे पे आ जाता है। किनारे पे आते ही चंग को आंधी तूफान और बारिश का सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से अब उसकी मुश्किलात में और इजाफा होता चला गया। और फिर चंग बेचारा अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी सी गुफा के अंदर जख्मी टांग के साथ चला गया और खुद को जिंदा रखने के लिए वहाँ पे गंदा पानी पीने लग गया। और अब चंग बेचारे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर चंग बेचारा उसी अंधेरी गुफा में पूरी रात बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपना घाव देखा और अब उसके घाव में कीड़े पड़ चुके थे और अगर अब उसकी टांग का इलाज नहीं होता तो उसको काफी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता था। और जब चंग को और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अपनी टांग के घाव को ठीक करने के लिए उसको आखिरकार उन पार्सलों को ओपन करना पड़ा। और उन पार्सल्स के अंदर चंग को एक खूबसूरत वॉलीबॉल और एक प्यारा सा ड्रेस और कुछ शूज मिले। और बचे हुए आखिरी पार्सल को उसने ओपन नहीं किया और एक उम्मीद की तरह उसने उस पार्सल को साइड पे रख दिया। उसने पार्सल की पैकिंग को ओपन करके अपने घाव के ऊपर एक पट्टी के तौर पे इस्तेमाल किया और जूतों के लेसेस निकाल के उसने अपनी पट्टी को मजबूती से बांध लिया। और पार्सल के अंदर से निकले हुए खूबसूरत ड्रेस ने उसने मछलियाँ पकड़ने का जाल बना लिया और इस तरह उसने काफी मछलियाँ इकट्ठी कर ली और कई दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। अब कच्ची मछलियाँ खाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उसने लकड़ी को रगड़ के आग जलाने का फैसला किया। सुबह से लेके शाम तक वो बेचारा आग जलाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन आग ना जल सकी। लेकिन वो कोशिश करता रहा और इस कोशिश के दौरान रगड़ते रगड़ते उसके दोनों हाथ खून से भर के जख्मी हो गए। और फिर चंग बेचारा अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता और वहाँ पे रखी हुई कुछ चीजों पे वो अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। अब उस सुनसान आइलैंड की मुश्किल जिंदगी ने चंग को पूरी तरह से तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसके बाद वो किनारे पे जाके अपने खून को पानी से साफ करता है और फिर चंग उस बोल को उठा के देखता है जिस बोल के ऊपर उसके हाथ का लाल खून लगा हुआ था। और फिर चंग कुछ अजीब ही काम करता है, वो अपने खून से उस बोल की आंखें और लिप्स बना देता है। अब वो बोली बोल किसी इंसान के चेहरे जैसी लग रही थी। वो अपने आप को ऐसा फील करा रहा था कि इस सुनसान जगह पे उसने अपना एक दोस्त बना लिया है। और फिर उसने उस बोल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने सामने रख के उसके साथ अपने दिल की बातें करने लग गया। अब उस बोल यानी कि विल्सन को अपना दोस्त बनाने के बाद उसको जीने के लिए एक सहारा मिल चुका था। और फिर वो अपने दोस्त विल्सन से बातें करते करते लकड़ी को घिसता गया और लकड़ी में से अचानक से चिंगारी निकल आई और अब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई जंग फतह कर ली हो। और इतने दिन कच्ची मछलियाँ खाने के बाद ये आग जलाना उसके लिए किसी फतह जंग से कम नहीं था। और फिर रात होते ही वो अपना खाना अच्छे से पका के पेट भर के खाता है और अपने दोस्त विल्सन के साथ वहाँ पे एंजॉय करता है। और अब चंग बेचारा इस हालात में रहने का आदी हो चुका था। मुसलसल कच्चा खाना और गंदगी में रहने की वजह से उसके दांत अब बुरी तरह से खराब हो चुके थे। उसके दांतों में इन्फेक्शन फैल चुका था और अब वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर वो फैसला कर चुका था कि वो अब अपने दांत को खुद ही निकाल देगा। वो एक बड़ी सी लोहे की रोड अपने दांत पे रख के एक पत्थर उठा के उस लोहे की रोड के ऊपर दे मारता है और फिर ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करते हुए वो अपना दांत निकाल देता है। और ऐसे ही टाइम गुजरता गया और चंग को यहाँ रहते रहते 4 साल बीत गए और अब वो एक जंगली आदमी बन चुका था। 4 साल गुजर जाने के बाद अभी भी वो उसी आइलैंड पे अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और वहीं पे अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। और फिर 4 सालों बाद समुद्र की तेज लहरों ने एक टूटा हुआ बंजर दरवाजा उसकी तरफ भेजा और फिर चंग उस दरवाजे को घंटों देखता रहा और सोचता रहा कि अगर वो ऐसा ही कुछ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो शायद वो इन लहरों का मुकाबला आसानी से कर लेगा। ये आइडिया उसके दिमाग में आते ही उसने दूसरे
पल का भी इंतजार नहीं किया और जल्दी ही लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो एक नाव बनाने में लग गया। वो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक बड़ा सा नाव का जाल बनाता है और फिर वहाँ से जंगली रस्सियाँ लेके उनको अच्छी तरह से टाइट करके बांध देता है। 4 साल इंतजार करने के बाद चंग के पास अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण आ चुकी थी और अब वो अपने दोस्त विल्सन को भी साथ लेके जाना चाहता था। और कुछ दिन नाव को तैयार होने में लग गए और आखिरकार चंग की नाव बन के तैयार हो गई। और फिर यहाँ से निकलते हुए उसने एक बड़ी सी चट्टान पे अपने यहाँ पे गुजरे हुए 10,500 दिनों का हिसाब भी लिखा। और फिर उस चट्टान पे अपने बारे में लिखते लिखते दूसरी साइड की हवा चलने लगी, जिस वजह से चंग ने अपनी नाव को पानी में उतार दिया। और फिर चंग अपने दोस्त विल्सन के साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ा। इतने साल गुजरने के बाद भी उस खौफनाक समुद्र की लहरें अभी भी चंग के ऊपर रहम नहीं कर रही थी। हर आने वाली लहर उसको पानी के अंदर डुबो देती थी। हर आने वाली लहर पहली लहर से काफी खौफनाक होती थी और उसके लिए एक नई मुश्किल लेके आती थी, लेकिन अभी भी वो अपनी हिम्मत और हौसला टूटने नहीं दे रहा था। और फिर जब वो पीछे मुड़ के उस खौफनाक जगह को देखता है जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के 4 साल गुजार चुका था, तो उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन अभी तो वो इन छोटी मोटी लहरों का सामना करके अपने आप को आगे तक लेके जा रहा था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि आगे आने वाला खतरा इससे भी बड़ा हो सकता है। और जब उसको ये उम्मीद लगी कि वो जल्दी ही दूसरी दुनिया के इंसानों तक पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक खौफनाक तूफान आ जाता है और उस तूफान में अब उसका चलना मुश्किल हो रहा था। ये रात उसके लिए इन 4 सालों में से सबसे ज्यादा मुश्किल रात थी, जो कि उसने समुद्र के बीचों बीच इन लहरों का सामना करते हुए गुजारी थी। इस तूफानी रात में चंग की जान तो बच चुकी थी, लेकिन उसकी नाव पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी और उसका पुराना दोस्त भी उसे छोड़ के यहाँ से चला गया था। रस्सी ढीली होने की वजह से उसका 4 सालों का साथी विल्सन अब पानी में बह चुका था। जब तक उसे विल्सन के पानी में डूबने का एहसास हुआ, तब तक विल्सन समुद्र की लहरों की वजह से काफी दूर जा चुका था। उसने विल्सन को बचाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया। विल्सन तेज लहरों के साथ कहीं दूर निकल गया और चंग बेचारा विल्सन को बचा ही नहीं पाया। विल्सन की जुदाई का दुख और चारों तरफ गहरे समुद्र को देख के चंग अब फिर से हार मान चुका था और वो जान चुका था कि अब वो कभी भी अपने घर वापस जा नहीं पाएगा। अब उसके अंदर जो जीने की थोड़ी सी उम्मीद बची थी वो भी बिल्कुल टूट चुकी थी और अब उसने नाव का चप्पू भी फेंक दिया था और अब वो उस नाव के ऊपर चुपचाप लेट गया था, क्योंकि अब उसे इंतजार करना था या तो अपनी मौत का या फिर किसी मोजज़े का। और फिर जैसे ही वो अपनी जीने की सारी उम्मीदें तोड़ के मौत का इंतजार करने के लिए तैयार हो गया था, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा बैरी जहाज आ जाता है और उस बैरी जहाज के लोगों ने उसको देख लिया था और वो उसको यहाँ से निकालने के लिए तैयार हो चुके थे। और फिर इतने तवील सफर के बाद चंग आखिरकार एक प्लेन में बैठ के अपने घर वापस फिर से लौट आया। घर पहुँचने के बाद वो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था, जिसको उसने 4 साल से नहीं देखा था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की बजाय एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है, जो आके उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड है। और फिर उसे वहाँ पे मालूम होता है कि जिसे 4 सालों में वो रात दिन याद करता रहा, अब वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रोता हुआ देख के चंग को समझ आ गई कि शायद उसकी कोई गलती नहीं है। वो 4 साल तक उसका इंतजार करती रही और जब उसे पता चला कि चंग इस दुनिया में नहीं है, तो उसे शादी करना पड़ गई। और ये सब कुछ दिखाते हुए चंग 4 सालों का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को चंग की ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।